Namaskar students, welcome again with this chapter number 1 from your geography section. Soil as a resource. Our chapter name is the resource and development. So today's topic is soil and as a resources. First we have discussed about the land and now second topic is the soil. So first we will discuss the many type of soils found in the Indian different landmass, just because India is the diversity in the different landmass. So soil is the most important renewable natural resource. It is the medium of plants growth and support different life of the living organism. This is the definition which given in your book. So there is a diagram given in your book also. This type of the diagram is there. So the top layer of the soil and the subsoil weather rock, in which in 8th class we have discussed the rock formations. Fine. So these also given. So this is the layers of the soil. Fine. Soil profile diagram 1.6. So look this diagram carefully. What are the different layers of the soil? First you have to remember this in this diagram that uppermost layer is सबसे ज़्यादा जो fertile होती है soil, वो कौन सी होती है? uppermost layer. So uppermost layer is very fertile. Fine. Then next topic is the classification of soil. So first I'm explaining the soil. Soil is a living system. It takes millions of years to form the soil, a few centimeter in depth. यानी कि जो few centimeter जो depth में जाता है उसको बनने में भी कहीं सारा टाइम लगता है soil को. Relief, parent rock and dead rock, climate, vegetations, other forms of life, times are important factors of the formation of soil. Formations के जो factors हैं वो different हैं. Climate से जो है उसका फ़र्क पड़ता है, weather का फ़र्क पड़ता है, हमारा जो भी atmospheric conditions है उसका बहुत फ़र्क पड़ता है soil पे. Various phases of nature such as change in the temperature. अब देखो क्या होता है, टेम्परेचर में चेंज होता है, एक्शन इन द रनिंग वाटर, विंड्स, ग्लेशियर एक्टिविटीज एंड द डीकम्पोजर्स एक्सेट्रा कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. यानी ये सारी सबको अंडरलाइन करेंगे, इनका कंट्रीब्यूशन होता है. First I am explaining the classification of resources, in which I have taken the first form of soil is alluvial soil. फाइन. तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी. उसके बाद आई विल एक्सप्लेन दिस ऑल टर्म्स अकॉर्डिंग टू योर बुक. सो ऑल्यूवल सॉइल इज द इंटायर नॉर्थर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ द ऑल्यूवल सॉइल डिपॉजिट. अब देखिए हमारा मैप होता है इस तरह से, ठीक है, ये हमारा मैप है. फाइन. अब इस मैप में जो ये नॉर्थर्न एरिया है हमारा, फाइन, दिस इज द नॉर्थर्न एरिया. ये हिमालयाज रेंज जिसको हम कहते हैं. फाइन. सो दिस हिमालयाज रीजन, यहाँ पे आते हैं हिमालयाज रिवर सिस्टम. जो भी रिवर्स इस एरिया से बहती है उसको हम कहते हैं हिमालयाज रीजन सिस्टम. कौन कौन सी रिवर्स है? इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. फाइन. सो दीज सॉइल मेड अप फ्रॉम द नॉर्थर्न प्लेन्स. किससे बनती है? नॉर्थर्न प्लेन्स से जो रिवर्स फ्लो होती है उन्हीं रिवर के जो डिपोजिशन से क्या फॉर्म होती है? ऑल्यूवल सॉइल. Next is the alluvial soil consists of various proportion of the sand, silt and clay. Sand, silt and clay यानी कि अलग अलग इसका टाइप्स है, जिसमें मेनली आपको दो चीज़ें याद करनी है. फर्स्ट इज भांगर एंड सेकेंड इज खादर. सो भांगर क्या है, खादर क्या है? जो न्यू और जो ओल्ड ऑयल सॉइल होती है, जो बहुत टाइम से वहीं रहती है नॉर्थर्न प्लेन्स में, जो नीचे शिवालिक रेंज आती है वहाँ पर, तो उसे कहते हैं ओल्ड सॉइल. और खादर होती है न्यू सॉइल. न्यू सॉइल में क्या होता है? जो कंटिन्यूसली ड्रेन होके जो वाटर आता है, वाटर के साथ जो डिपॉजिट आता है, तो कंटिन्यूसली न्यू फॉर्मेशन होता है सॉइल का. फाइन स्टूडेंट्स. सो टेक आउट योर बुक. आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल्यूवल सॉइल फ्रॉम अकॉर्डिंग टू योर बुक. Namaskar students, welcome again with the chapter number 1 from your geography sections, resources and development. So let's start with the soil as a resources. In last class we have discussed about the land resources. You can see this diagrams. In India there are 43% of plains and 30% mountain and 27% plateaus area. Fine. Next we have discussed about the
लैंड यूटिलाइजेशंस की लैंड का किस किस तरह यूटिलाइजेशन हो रहा है. देयर इज़ अ टॉपिक forest land not available for cultivations, other uncultivated land, fallow land, and then the net shown area. So underline this topics. Net shown area क्या होता है? Area shown more than once in agriculture year, जहाँ पर एग्रीकल्चर उसे होता है पर्टिकुलर, उस एरिया को क्या कहते हैं? नोट शोन एरिया या फिर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. नाउ आफ्टर दैट लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया. यहाँ पर देखिए कुछ डायग्राम्स हैं आपकी बुक में, इन्हें रीड आउट करेंगे. कितना % फॉरेस्ट है. कुछ बुक्स पुरानी हैं, कुछ बुक्स नहीं हैं, तो थोड़ा बहुत फिगर चेंज हो सकता है, बट ये ऑल थिंग्स गिवन इन योर बुक है ना. रिपोर्टिंग एरिया 100%, यानी पूरे कंट्री का जो हमारा लैंड है उसका कितना कितना % फॉरेस्ट है. देखिए बैरन लैंड है, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर्स. सो स्टडी दिस डायग्राम ऑल्सो. सो टुडेज टॉपिक इज़ सॉयल. यहाँ इसके बाद सॉयल डिग्रेडेशंस एंड कंजर्वेशंस मेथड, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था. नाउ सॉयल एज अ रिसोर्स. अब हम आज करेंगे सॉयल के बारे में. सो सॉयल एक नेचुरल रिसोर्स है, ये सबको पता है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है. एंड यहाँ पर एक डायग्राम भी है नीचे. इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ. यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली सपोर्ट किससे होता है? इनका मीडियम है ये, उनके सपोर्ट का, उनके ग्रो का. द सॉयल इज़ अ लिविंग सिस्टम. ये एक लिविंग सिस्टम है. इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉयल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ. यानी फ्यू सेंटीमीटर डेप्थ तक की भी सॉयल को फॉर्म होने में कई सारे मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. सो रिलीफ पैटर्न्स, रॉक्स, बेड रॉक्स, क्लाइमेट, वेजिटेशंस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एट द टाइम ऑफ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सॉयल. यहाँ पे क्वेश्चन बना है विच फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉयल. तो कौन कौन से आ जाएंगे यहाँ पे? देखिए रिलीफ पैरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे फैक्टर्स हैं विच आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉयल फॉर्मेशन. नेक्स्ट, वेरियस forces of nature such as change in the temperature, actions, running water, wind and the glaciers, activities of the decomposer etc. contribute the formation of soil. इनका भी बहुत important role रहता है. नेक्स्ट यहाँ देखिए एक डायग्राम है, ये टॉप सॉयल है. इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं. जो टॉप सॉयल है, सबसे ऊपर की सॉयल होती है सब सॉयल, वेदर रॉकी, देन द वेदर पेरेंट रॉक, यहाँ पे रॉक मटेरियल्स पाए जाते हैं, और लास्ट में है अनवेदर्स पेरेंट बेड रॉक, जहाँ पर स्टोन्स आ जाते हैं. सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द सॉयल प्रोफाइल. फाइन, नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू करते हैं हम लोग. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल की. किस क्लासिफिकेशन क्या है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑल्यूवल सॉयल. इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगी. कई तरह की जो है वेजिटेशन पाई जाती है, अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म से, रिलीफ फीचर्स है, उसी के अकॉर्डिंग सॉयल भी क्या है हमारी डिफरेंट टाइप्स की, अलग अलग एरिया में. तो फर्स्ट इज़ ऑल्यूवल सॉयल. ऑल्यूवल सॉयल मोस्टली फाउंड इन द नॉर्थन प्लेन्स. नॉर्थन प्लेन एरिया में पाई जाती है, जो हिमालयस रिवर सिस्टम इंडू, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. दीज सॉयल्स आर एक्सटेंड इन राजस्थान एंड गुजरात थ्रू अ नैरो corridors. Alluvial soil is also found in the eastern coastal plain, particularly in the deltas of the Mahanadi, Godavari and Krishna and Kaveri rivers. यहाँ पर पाई जाती है. ये देखिए इस तरह की ऑल्यूवल सॉइल का यहाँ पे पिक्चर दे रखा है. वेरियस क्रॉप्स उगाई जाती है. प्रोपोर्शन ऑफ सैंड जो होता है स्लिट होती है इसमें. Clay as move the inlands to a river valley, so particles appear some of the weight bigger in size. In the upper reaches of the river valleys that is near to the palace of the break of the slopes, the soil is the charos. Such soil are more common and the Piedmont plains such as the Duras, Chos and the Tarai. ये नाम है उन एरियाज़ के. ठीक, साइज़ के अलावा देखिए दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे मैंने आपको लेक्चर में बताया था, खादर एंड भांगर. दो चीज़ें आएगी. ओल्ड ऑल्यूवल सॉइल को क्या कहते हैं? भांगर. न्यू ऑल्यूवल सॉइल को क्या कहते हैं? खादर. इसको अंडरलाइन कर लेंगे अच्छे से, ये चीज़ें कई बार पूछी जाती है. नेक्स्ट इज़
यहाँ पर खादर बांगर जो है इसमें डिफरेंसेस का क्वेश्चन आता है, वी विल डू इन द क्वेश्चन आंसर्स। ऑलिवल सॉइल जो है एज अ होल वेरी फर्टाइल, सबसे ज़्यादा पूरी तरह से अगर देखा जाए तो बहुत फर्टाइल होती है। मोस्टली दीज सॉइल्स कंटेन एब्यूकेट प्रोपोर्शन ऑफ द पोटाश, सबसे ज़्यादा पोटाश पाया जाता है, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम विच आर आइडल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर कैन। अब देखिए यहाँ पे स्पेशली क्रॉप्स आ रही है, कौन कौन सी क्रॉप्स के लिए सूटेबल है, शुगर कैन, पैडी, वीट एंड अदर सीरियल्स एंड पल्सेस क्रॉप्स, जो सीरियल्स पल्सेस होती है उसके लिए। ड्यू टू द हाई फर्टिलिटी रीजन्स ऑफ ऑलिवल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड द डेंसली पॉपुलेटेड सॉइल इन द डेयर्स एरियाज more inclines and can be productive after the proper treatment and irrigations। कई एरियाज़ में पाई कुछ जो सॉइल में जो भी कमियां होती है उसे पूरी करके उसे क्रॉप्स के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। नेक्स्ट सॉइल इज़ द ब्लैक सॉइल, जैसा कि इसका नाम है ब्लैक सॉइल। कलर कैसा होता है इसका, ब्लैक। ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल, इसको क्या कहते हैं, रेगर सॉइल, इसको अंडरलाइन करेंगे। दूसरा नाम है आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन, मोस्टली कौन सी क्रॉप उगाई जाती है इसमें, कॉटन, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। It's believed that climatical conditions along with the parent rock materials are important factors of formation of the black soil. These type of soil typically Deccan traps of the basalt region spread the northwest Deccan plateau and made up of the lava flow. लावा फ्लो से बनी होती है। प्लेट्यूज ऑफ कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, कौन कौन से एरिया का कवर कर रही है, प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सुरात्रा, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड ऑफ द साउथ ईस्ट डायरेक्शंस अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैली। यहाँ पे देखिए ब्लैक सॉइल की पिक्चर दे रखी है। एक्सट्रीमली फाइन होती है, क्लेली मटेरियल होता है, वेल नोन द कैपेसिटी ऑफ द होल्ड मॉइस्चर, सबसे ज़्यादा मॉइस्चर क्या करती है, ये होल्ड करती है, इसके लिए जानी जाती है। एडिशंस दे आर रिच इन द सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज द कैल्शियम्स, कार्बोनेट, मैग्नीशियम्स, पोटाश एंड, यहाँ देखिए पिक्चर आया है, इसको ध्यान से देखेंगे इस पिक्चर को। ये ऑल areas are given where these soils are found. You can learn according to this highlighted portion. Fine. So limes, these are soil are the generally poor in the phosphoric contents, में phosphorus जो content है वो missing होता है। They develop deep check during the hot weathers with the help of the proper aerations of the soil. These soils are sticky when wet and difficult to work on the unless until immediately after the first shower of during the pre monsoon period। देखिए इसमें इतना क्लेई होता है ब्लैक सॉइल में कि स्टिकी होती है, बहुत ज़्यादा चिपकती है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है जहाँ पे जो ब्लैक सॉइल पाई जाती है क्रॉप्स को ग्रो करना, क्योंकि वो बहुत मडी और जैसे फर्स्ट शावर इमीडिएटली उस पर नहीं किया गया तो बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स आती है क्रॉप्स को ग्रो करने में या जो भी वर्क करते हैं लोग उस फील्ड में। नेक्स्ट सॉइल इज़ रेड एंड येलो सॉइल, कहाँ पर पाई जाती है, यह मोस्टली अंडरलाइन करेंगे, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउथ पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन। फाइन, कौन कौन सी क्रॉप्स इसमें उगाई जाती है ये देख लेंगे एक बार। सॉइल डेवलप द रेडिश कलर्स ड्यू टू द डिफ्यूजन्स ऑफ द आयरन स्टेलाइंस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स, इसके कारण ये क्या होती है, आयरन का इसमें होता है, इसका कलर भी रेडिश होता है, रेड लाल मिट्टी कहा जाता है इसको। इट लुक्स येलो व्हेन अकर इन द हाइड्रेट फॉर्म, जब ये सूख जाती है तो इसका कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। लेटराइट सॉइल, जो लेटराइट सॉइल हैज़ बीन डिलीवर फ्रॉम द लेटिन वर्ड लेटर, किस वर्ड से बना है, ये लेटर वर्ड से, इट मीन्स ब्रिक। The laterite soil develop under the tropical and subtropical climate and the alternate with the dry seasons. Soil, यहाँ पर देखिए इसका pH भी दे रखा है, pH 6 दे रखा है, इसको देखेंगे कहाँ कहाँ पाई जाती है। स्टेट ऑफ वेस्टर्न घाट रीजन्स, महाराष्ट्र, उड़ीसा, there is also found, these are the pictures of the laterite soil. Next is arid soil. Arid soil के बारे में, एरिड सॉइल जो है इस रेंज फ्रॉम द रेड इन द ब्राउन इन कलर, कौन सा कलर होता है इसका, ब्राउन। दे आर जनरली सैंडी इन द टेक्सचर्स ऑफ द सैंड लाइन्स एंड नेचर्स। इन सम एरियाज salt content is very high and common salt is obtained by the evaporating of the water due to the dry climate, high temperature, evaporations
इवोपरेशंस जो होता है इसमें फास्टर होता है। कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है मोस्टली वेस्टर्न राजस्थान एरिया में। यहाँ इसको अंडरलाइन करेंगे, वेस्टर्न राजस्थान एरिया में। ये यहाँ पे इसका एग्जाम, फॉरेस्ट सॉइल, इसको माउंटेन सॉइल भी कहते हैं। माउंटेन सॉइल ये माउंटेन एरिया में पाई जाती है। बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है ये सॉइल, क्योंकि जो हिमालयाज़ एरियाज़ है, द सॉइल एक्सपीरियंस द denudate and the acidics with the low humus content. The soil found in the lower part of the valley, particularly on the river terrace and the alluvial fens of the fertile. So it's all about the soil. Now next topic of this chapter is the soil erosion and soil conservations. We will do in the next chapter. Thank you and have a nice day.